سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی غیر ملکی امداد میں پوسٹر بوائے کے طور پر استعمال ہونے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خاندان نے زلزلہ متاثرین کے لیے دی جانے والی امداد میں سے چوری کی۔ برطانوی اخبار نے پاکستان کو دی جانے والی برطانوی امداد سے چوری کے الزامات پر مبنی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے اسے سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندان پر لگائے جانے والے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک جانب عالمی ترقیاتی منصوبوں کے لیے امداد دینے والا برطانوی محکمہ DFID سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر امدادی رقم کی بارش کرتا رہا، تو دوسری جانب ان کا خاندان عوامی فنڈ کے ملین پاؤنڈز منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ منتقل کرتے رہے۔ پاکستان کے تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ منتقل کی جانے والی رقم میں DFID سے لی گئی امداد کا حصہ شامل ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے اسے وزیر اعظم عمران خان کی سرپرستی میں سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندان پر لگائے جانے والے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے شواہد موجود نہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ برسوں سے نواز شریف اور شہباز شریف کے خاندان پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو تحفظ فراہم کیا، عدلیہ کو دباؤ میں لیا یا انہیں رشوت دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان خاندانوں نے بے قصور افراد کو قتل کیا، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خاندان نے زلزلہ متاثرین کے لیے دی جانے والی برطانوی امداد میں نقب لگائی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کرتارپور راہداری منصوبے پر پاک بھارت مذاکرات کا دوسرا مرحلہ واگا بارڈر پر جاری ہے۔ 8 رکنی بھارتی وفد کی نمائندگی جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ SCL داس کر رہے ہیں، اور مذاکرات میں شریک 13 رکنی پاکستانی وفد کی قیادت DG سارک اور ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز اعظم ملک سے۔ اعظم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، کرتارپور راہداری کے اوپر پاک بھارت مذاکرات واگا بارڈر پر جاری ہیں۔ ڈاکٹر محمد فیصل ترجمان ہے وزارت خارجہ کے، پاکستان کے 13 رکنی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، اور SCL داس وزارت داخلہ کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں، بھارت کی طرف سے اپنے 8 رکنی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ مذاکرات ابھی جاری ہیں، مزید 1 گھنٹہ تک یہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ آج کے ہونے والے مذاکرات کو ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ملتوی ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر فیصل کا تھوڑی دیر قبل پریس کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ 550ویں بابا گرو نانک دیو کی سالگرہ کے موقع پر، جنم استھان کے موقع پر یہاں پر اس راہداری کو کھولا جائے۔ آج کے ہونے والے ان مذاکرات میں جو راہداری کے اوپر پل بنایا جانا ہے اور جو کوریڈور ہے اس کے اوپر گیسٹ لسٹ، اس کے ساتھ ساتھ کرنسی کس طرح کی جو گیسٹ یہاں پر آئیں گے لے کے آئیں گے، اور ویزا ہے یا جو بھارت کی طرف سے یاتری آئیں گے ان کی انٹری لسٹ تیار کی جائے گی۔ یہ پورا پروسیجر ہے جس کے اوپر دونوں طرف سے مذاکرات جاری ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی یہ مذاکرات ختم ہوں گے تو ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے بریف کریں، لیکن اگر بھارتی حکام نے بریف نہ کیا تو وہ اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاہم مذاکرات ابھی تک جاری ہیں، اور اس حوالے سے جیسے ہی مزید ڈیٹیل سامنے آئیں گی ہم آپ کو اطلاع کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ اعظم ملک، بہت شکریہ۔ ان مذاکرات سے متعلق ہم آپ کو بلیٹن میں آگے چل کے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بات کرتے ہیں موسم کی، لاہور کی بات کرتے ہیں۔ لاہور اور اس کے ملحقہ علاقوں میں شدید بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شیر شاہ کالونی میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ہمیں رپورٹ کریں گی لاہور سے فروا۔ لاہور میں الگ صبح ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسلادھار بارش سے مزنگ چنگی، لارنس روڈ، گورنر ہاؤس سے ملحقہ سڑکوں سمیت کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کئی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش تاجپورہ میں 51 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں 36، اقبال ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن میں 35، گلبرگ اور اندرون شہر میں 33، فروخ آباد اور اپر مال پر 32 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ MD واسا زاہد عزیز کا کہنا ہے کہ واسا کا عملہ نکاسی آب کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے۔
मूसलाधार बारिश से लेस्को डिवीजन में मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शेर कॉलोनी में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन सफ़ीर अहमद और अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से माँ बेटा जख्मी हो गए। उधर खुशदार में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि बदीन से अपडेट यह है कि यहाँ तेज गर्दालूद हवाओं के बायस दर्जनों कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। हाफिजाबाद शहर और गिरदो नवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जहां बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। गुजरावाला में गुज़िश्ता रात से बारिश के बायस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद में बारिश के बायस जड़ावाला में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबने से खातून 10 साला बेटे समेत जख्मी हो गई। बदीन में जिला भर में तेज हवाओं के बायस देही और साहिली इलाकों में दर्जनों कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि शहरी इलाकों में भी दुकानों के शेड जुड़ गए। उधर बलूचिस्तान में खुशदार के इलाके बेजनपुर के करीब सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। जिला बदीन के तमाम इलाकों में गर्दालूद हवाओं ने मामूलात दरहम बरहम कर दिए हैं। गुजरावाला शहर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार है। हाफिजाबाद की बात करें तो बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद बताएंगे बदीन से मोहम्मद हनीफ सई, गुजरावाला से रिपोर्ट करेंगे उस्मान खलील और हाफिजाबाद से सैयद मोहम्मद ज़मीर। देखिए, ज़िला बदीन के तमाम देही, शहरी और शहरी इलाकों में तेज़ तूफ़ानी गर्दालूद हवाओं का राज है। ये तेज़ तूफ़ानी गर्दालूद हवाओं का सिलसिला आज सुबह से शुरू हुआ, जो अभी भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। तेज़ हवाओं के साथ आसमान से मट्टी बारिश की तरह बरस रही है, जिसने तमाम मामला दरम बरम कर दिए हैं। देही इलाकों की बात की जाए तो देही और शहरी इलाकों में दर्जनों कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने की इतलात है, जबकि शहरी इलाकों में भी मुतअद्दिद दुकानों के शेड और छपरे उड़ गए हैं। साली इलाकों में तेज़ तूफ़ानी गर्दालूद हवाओं के नतीजे में समुद्री मदोजज़र में भी इजाफा बताया जाता है। जी, गुजरावाला शहर और गिरदोनों में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी था। इस वक्त बारिश तो थम चुकी है, लेकिन यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे खुशगवार मौसम में शहरी जो है घरों में बैठने वाले नहीं, क्योंकि आज संडे है तो शहरियों ने आज यहाँ के मशहूर नाश्ता पॉइंट से वहाँ का रुख किया है। हाफिजाबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के सिलसिले की वजह से शहर के नशेबी इलाका जात जो हैं इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। गली मोहल्लों में कई फुट पानी खड़ा हो चुका है। वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले लंदन में हल्की बारिश हुई है, और आज मौसम कैसा रहेगा, पेशगोई क्या है और फाइनल मैच के टिकट्स की क्या सूरत हाल है, इसके लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल माजिद भट्टी से। वैसे तो फोरकास्ट ज़्यादा बुरी नहीं है, खुशगवार मौसम की पेशगोई है, लेकिन पिछले कुछ 4-5 घंटे से जिस तरह हल्की बारिश चल रही है, इस वक्त मैं लॉर्ड्स पर मौजूद हूँ और पिच का जो स्क्वायर है और बॉलिंग रनअप जो है उसको मैं देख रहा हूँ कि कवर से ढांप दिया गया है और उसके ऊपर भी पानी खड़ा हुआ है और वाइपर से कोशिश की जा रही है ग्राउंड स्टाफ की तरफ से कि पानी को खुश किया जाए। तमाशाई नॉर्मली इस वक्त तक अच्छा खासा क्राउड आ जाता है, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है सुबह से हर तरफ लोग छतरियां लेकर चल रहे हैं और जो ट्रेन स्टेशन है इस लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड के बाहर, वहाँ भी ज्यादा गहमा गहमी जो नॉर्मली होती है इस वक्त वो नजर नहीं आ रही। लेकिन बारिश का सिलसिला जो है, जिसका मैंने पहले बताया कि जो पिछले 3-4 घंटे पहले शुरू हुआ था, अब भी जारी है और काफी जगहों पर सड़क पर और ग्राउंड के अतराफ में पानी नजर आ रहा है। तो लग ये रहा है कि मैच जो है वो ताखीर का शिकार होगा। लग ये रहा है कि मैच ताखीर का शिकार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। थरपारकर से खबर शामिल करेंगे, जहां लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती और वीडियो बनाने के वाक़े में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाहली के इलाके में रात छापे मारकर मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि वाक़े का एक मुलजिम पहले ही पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक चल्हार के गांव में लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती और वीडियो बनाने वाले 2 मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 4 रोज़ कबल का है, जब मुलजिम स्वाई मेघवाड़ लड़की को अपने खाली घर ले गया था, जहां उसने अपने साथियों आदम दल और कबूल रहमों के साथ मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाई थी। SHO का कहना है कि मुलजिमान को रिमांड के लिए आज अदालत पेश किया जाएगा।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के मामले पर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर एतराज़ात लगा दिए हैं और ऑपोजिशन से वजाहत मांगी गई है। सेनेट सेक्रेटेरिएट के ऑपोजिशन की सेनेटर शरी रहमान को खत में कहा गया है कि ऑपोजिशन ने सेनेट इजलास बुलाने के लिए 2 दरखास्तें जमा करवाई हैं। एक ही वक्त में 2 दरखास्तें जमा करवाना आइन और सेनेट ज़वाबित में दर्ज नहीं। दोनों दरखास्तों पर एक ही अरकान के दस्तखत हैं। बताया जाए कि कौन सी दरखास्त पर कार्रवाई शुरू की जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने सेनेट सेक्रेटेरिएट के एतराज़ात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इस मामले में गैर जानिबदार किरदार अदा उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सेनेट सेक्रेटेरिएट इस मामले में गैर जानिबदार किरदार अदा करे। सेनेट सेक्रेटेरिएट के एतराज़ात ताख़ीरी हरबा हैं। अपोजिशन जमातें ऐसे तमाम हरबे नाकाम बनाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि रिक्वेजिशन जमा होने के 4 दिन बाद एतराज़ लगाने का मकसद क्या है। और गुजरावाला से खबर शामिल करेंगे, जहां पीटीआई रहनुमा डॉक्टर सोहेल जफर चीमा पर पाकिस्तानी नोट, रियाल, यूरो और डॉलर्स सबकी बरसात की गई। सोहेल जफर चीमा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब का चेयरमैन बनने के बाद आबाई शहर पहुंचे थे। साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर सोहेल जफर चीमा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब का चेयरमैन बनने के बाद आबाई शहर गुजरावाला पहुंचे तो पीटीआई की मुकामी क़यादत ने शानदार इस्तकबाल किया। कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। काफिला माछे के सिंधुआ पहुंचा तो पीटीआई रहनुमा शाहिद इकबाल नागरा ने पाकिस्तानी नोट, रियाल, यूरो और डॉलर्स की बरसात कर दी। डॉलर और यूरो हवा में उड़ते देखकर पीटीआई कारकुनान भी सब काम काज छोड़कर डॉलर लूटते रहे। रहीम यार खान में आज बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की जानिब से मुनक्किद नवाजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर्स मुमताज चांग के मुताबिक रहीम यार खान के इलाके नवाजाबाद में पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। कन्वेंशन में आसिफा भुट्टो भी शिरकत करेंगी। कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। बरतानिया की गैर मुल्की इमदाद में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल होने वाले साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खानदान ने जलजला मुतासरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद में से चोरी की। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली बरतानवी इमदाद से चोरी के इल्जामात पर मबनी एक रिपोर्ट शाये की है। इसी पर रद्द अमल जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब। रिपोर्ट सामने आई है बरतानवी अखबार की जानिब से। शहजाद अकबर साहब, क्या कहेंगे? ये देखिए, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। बिकॉज एक तो ये है कि ये जो तहकीकात पहले से पाकिस्तान में जारी थी, इनका आगाज़ जो हुआ वो फैमिली के मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो थी उनको लेके हुआ, और जब उनको अनफोल्ड करना शुरू हुए तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकली, जिसमें से जो 90% से ज़ायद ट्रांजैक्शंस आई हुई हैं वो उन लोगों की तरफ से हैं जो आज से पहले उन ममालिक में कभी गए ही नहीं। वो बड़े गरीब लोग हैं। ये बिल्कुल जैसे ओमनी ग्रुप वाला केस था फेक अकाउंट्स का, यहाँ पे फेक टीटीज का अकाउंट सामने आ गया कि एक पाकिस्तान का कानून है कि बाहर से पैसा आएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग करें। तो यहाँ से जब इसका आगाज़ हुआ और अब जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती जा रही है उसमें मुख्तलिफ चीज़ों की निशानदेही हो रही है। सबसे पहली बात तो जो यहाँ के तहकीकाती इदारों के सामने भी आई है और ये आज की स्टोरी में भी सामने आई है कि ये वही पैसा है जो पाकिस्तान से कैश की सूरत में पहले हुंडी हवाला डीलर्स को दिया जाता है और वो फिर इसको रिमिटेंस शो करके सिर्फ आपके लिए एक वो क्रिएट कर देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके अंदर वो शो कर देते हैं। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि इसके अंदर बरतानिया की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2 हवाले से। एक तो ये कि ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बरतानिया से ओरिजिनेट करती हैं, जबकि जो लोग भेजने वाले थे, जो लोग उसको अलाकार थे, सहूलतकार थे, वो भी इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। उनकी स्टेटमेंट्स भी सामने आ चुकी हैं। जो लोग भेजने जिनके नाम पे भेजे गई वो तो गरीब लोग, कोई पापड़ बेचने वाला, कोई रेडी फरोश, तो वो लोग थे, वो तो भेज ही नहीं सकते थे। तो साफ जाहिर होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई।
दूसरा इसमें कनेक्शन ये है कि वो इसका कनेक्शन उससे भी जोड़ रहा है जो एड की मद में पंजाब में स्पेशली बरतानिया हुकूमत जो उनका इंटरनेशनल एड फंड है उसमें जो पैसे दिए गए, और ख़ासकर जो ये आर्टिकल जिसकी तरफ निशानदही करता है वो एक ज़लज़ला ज़दगान और सैलाब मुतासरीन के लिए जो फंड है उसकी मद में दिए गए पैसे हैं। और ये इसलिए भी बड़ा ज़रूरी और रेलेवेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये केस जो है ज़ेरे तफ्तीश थे नैब में, तो एक जो उस वक्त इस फंड के इंचार्ज थे अकरम साहब, उनका शायद जिक्र भी है इसके अंदर, वो ऑलरेडी प्री बारगेन कर चुके हैं और उनके इकबालिया बयान के अंदर और उस पूरे केस के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो नवाज शरीफ साहब के दामाद को उसमें से उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट की हुई है उसी फंड में से। इसी केस के सिलसिले में जब इनको बुलाया गया अली इमरान को तो ये पाकिस्तान से मफरूर हो गए। इसी तरह से सुलेमान शहबाज हैं जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं इस पूरे वेब ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के, वो नवंबर से पाकिस्तान से मफरूर हैं और बारहा बुलाने के बावजूद नहीं आते। हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब से भी जब उनकी डिक्लेयर्ड करदा 4 लंदन के मकानों फ्लैटों के बारे में पूछा गया कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो उनका जवाब भी यही था कि मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं सलमान से पूछूंगा और हमजा से पूछूंगा। तो अब जो मेन कैरेक्टर है उसे तो बड़ी तसल्ली से बरतानिया बिठा दिया गया है, और अब जब ये स्टोरी बरतानिया से आती है और वहाँ के अखबार में आती है जहाँ पे एक बड़ा स्टैंडर्ड है, वो ड्यू डिलिजेंस के बाद ही स्टोरीज करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा इनके लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा भी कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ये रिक्वेस्ट कर रहा है बरतानवी हुकूमत से कि इसमें हमें तफ्तीश में भी मावनत फराम की जाए, जिसमें हमें बिल्कुल नेशनल क्राइम एजेंसी काफ़ी मावनत फराम कर रही है, लेकिन साथ साथ उन मुल्ज़मान तक भी रसाई दी जाए जो बड़े आसानी से बरतानिया बैठे हुए हैं और तफ्तीश का हिस्सा नहीं बन रहे और कल ये प्रोसिक्यूशन में जाना है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं समझता हूँ ये बड़ी डेवलपमेंट है। और अब इसमें ये जो एड से रिलेटेड चीज़ें आई हैं इसको हुकूमत अपने जो हमारा कमीशन कायम करदा कमीशन है काबीना की तरफ से जिसने बैरूनी कर्जे और एड्स की मामलात को देखना था, उन्हें भी भिजवाया जाएगा कि होलिस्टिकली देखा जाए कि एड की मद में बाहर से जितना पैसा आया है उसमें क्या वो अब वाकई ही उस मकसद के लिए खर्च हुआ, और फिर नीचे जो एग्जीक्यूशन का लेवल है उसके ऊपर क्या हुआ, क्या हकदारों को उनका हक मिला। जिस तरह से अगर लो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर फेक जो गोस्ट रिसीवर्स रेसिपिएंट्स हैं उनके मामले भी हैं, इसी तरह से ज़लज़ला ज़दगान के अंदर भी जो कि वहाँ पे कैश दी जाती है तो वहाँ पे खुद बुद जो हुई है तो उसकी भी जवाबदेही बड़ी ज़रूरी है। और फिर जब खुद बुद करने वाले खुद बयान देते हैं कि हम इसमें से पैसे जो उस वक्त का रूलिंग फैमिली थी उनके दामाद को या उनके बेटों को देते रहे और उसके अकाउंट्स ट्रांसफर भी नज़र आते हैं, तो फिर ये तमाम मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। और ये तो केसेस भी फाइल होंगे। हमजा शहबाज इसी सिलसिले में अरेस्टेड हैं और उनकी इस वक्त तफ्तीश हो रही है, जुडिशल रिमांड में है। अच्छा शहजाद साहब, एक चीज़ मज़ीद वाज़े कर दिएगा, ये रिपोर्ट जो बरतानवी अखबार ने शाया की है, ये रिपोर्ट पाकिस्तानी हुकूमत ने जो तहकीकात की हैं उसकी रोशनी में मुरतब की गई है? जी देखिए, इसमें बिल्कुल ये जो पाकिस्तानी हुकूमत की तहकीकात हैं उसकी रोशनी में भी हैं, और जो जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो बरतानवी अखबार है उसने खुद भी इसकी तफ्तीश की है और इसमें जितने किरदार हैं उन सब से इसके ऊपर सवाल और जवाब भी किए गए हैं। रिपोर्ट के अंदर तो इवन हमजा शहबाज साहब का भी वर्जन पूरी तरह से छापा गया है और उनसे पूछा गया, और बात वही है कि उनके जवाब के अंदर भी वही चीज़ है जो पहले मिसिंग थी पानामा वाले केस में, मनी ट्रेल, कि आप अगर सोर्स बता सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का तो मामला वही खत्म हो जाता है, लेकिन वो बजाय सोर्स बताने के वो यही कह रहे हैं कि ग्वांतानामो में भी ऐसा होता था। तो इस तरह तो ये वही वाला मामला है कि आप खुद बताने से कासिर हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं जी तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी। बात यह है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से पीछे भी सवाल किया जाएगा, बिकॉज आप ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं हैं, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके वालिद चीफ मिनिस्टर थे, तो ये तमाम चीज़ें तो सामने आएंगी और उसको इसी तरह से देखा जाएगा। अच्छा शहजाद अकबर साहब, इस इंटरव्यू में जो शाया किया गया है जिन मुल्ज़िमान का जिक्र किया गया है, जिनसे तफ्तीश हुई, जिनसे इंटरव्यू हुआ, क्या उन तक हुकूमत पाकिस्तान ने रसाई दी थी? नहीं, देखिए हुकूमत पाकिस्तान कैसे रसाई दे सकता है, लेकिन अगर कोई जेल में है और कोई सहाफ़ी जाके किसी से मिलना चाहता है और अगर वो फिजिकल रिमांड में नहीं है तो वो तो मुलाकात हो सकती है। जुडिशल रिमांड के ऊपर तो मुलाकात होती है। अच्छा यहाँ पर अच्छा क्योंकि यहाँ पर एक ठीक है, यहाँ पर एक लाइन मेंशन की गई है कि जो रिमांड पर थे जेल में उनसे भी इंटरव्यू की इजाजत दी गई, तो उससे मुताल्लिक वजाहत चाह रहे थे बस।
जी जो वही कह रहा हूँ, रिमांड में जाहिर बात है आप जब जेल में जाते हैं और आप किसी से मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। बिल्कुल इजाजत लेनी पड़ती है और इजाजत मांगी गई होगी, जो मुतल्लिका महकमा है, होम डिपार्टमेंट है, किसी से ली गई होगी, ठीक है, तभी मुलाकात हुई होगी। ठीक है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बरतानवी अखबार की जानिब से जो ये इंटरव्यू शाये किया गया है बरतानवी अखबार में शहबाज शरीफ से मुतल्लिक, उस पर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। और अगर आपको थोड़ा सा इसके मुतल्लिक बताते चले तो बरतानिया की गैर मुल्की इमदाद में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल होने वाले साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद से चोरी की। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली बरतानवी इमदाद से चोरी के इल्ज़ामात पर मबनी रिपोर्ट ये शाये की है। यहाँ पर यह बात भी अहम है कि शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने इसे सियासी इंतकाम देते हुए रद्द कर दिया है। इस पर मुस्लिम लीग नून का वर्जन जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये रिपोर्ट जो बरतानवी अखबार की जानिब से शाये की गई है, इस पर आपका क्या वर्जन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त इमरान खान हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और जो जज वीडियो केस सामने आया है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये फैब्रिकेटेड स्टोरीज का सहारा ले रही है। मैं आपको जो इस वक्त विकीपीडिया है उसकी हवाले से कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस अखबार को मुस्तरद किया कि ये बहुत अनरिलायबल है और डेली मेल की कोई साइटेशन विकीपीडिया की वेबसाइट पे नहीं इस्तेमाल की जा सकती क्योंकि ये फैब्रिकेट करते हैं, ये सनसनीखेजी करते हैं और इनकी जो स्टोरीज हैं वो हकायक के बरखिलाफ होती हैं। तो एक ऐसा अखबार जिसको बैनुल अक़वामी तौर पे सनसनीखेजी के लिए और झूठी खबरें छापने के लिए मुस्तरद किया जा चुका है, उसकी स्टोरी को एक बरतानवी अखबार की स्टोरी कह के पाकिस्तान में किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। अपनी सियासत के लिए ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को कोई गैर मुल्की मुल्क किसी किस्म की इक़्तिसादी ताउन ना करे। जो डिफिड है ये कोई शौकत खानम की तरह का इदारा नहीं है कि जिसमें आरिफ नकवी साहब दुनिया भर से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे डाल सकते हैं या इमरान खान साहब का जाती अकाउंट नहीं है। डिफिड बरतानिया की हुकूमत का सरकारी इदारा है और उनका ऑडिट एंड अकाउंट का जो सिलसिला है या निज़ाम है वो बहुत मुस्तहकम और शफाफ होता है क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर ये सारे अकाउंट्स डिबेट होते हैं, ऑडिट होते हैं। तो इसलिए इस किस्म की जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं, जो टेबल स्टोरीज हैं, जो स्पॉन्सर्ड स्टोरीज हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को दाव पे लगा रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए और अपोजिशन की किरदार कुशी के लिए। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा अखबार के खिलाफ जिन्होंने इंटरव्यू शाये किया है, स्टोरी शाये की है, क्या आप कोई कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं? जी, इसके ऊपर जो लीगल माहिरीन है वो इसका जायजा लेंगे, लेकिन आपको मैं दावत दूंगा कि आप जाके इस अखबार को सर्च कीजिए और आपको पता लगेगा कि दुनिया में इस अखबार के बारे में क्या जाता है, कहा जाता है। और विकीपीडिया ने ऑफिशियली इसको बैन कर दिया है कि डेली मेल की कोई खबर साइटेशन के तौर पे विकीपीडिया में इस्तेमाल नहीं की जा सकती क्योंकि ये सनसनीखेजी करते हैं, झूठ पे अपनी खबरें छापते हैं और ये इनकी पीआर फर्म ने उसके जरिए पता नहीं कितने लाखों पाउंड इन्होंने खर्च किए होंगे और उसके जरिए ये खबर लेकिन एहसन इकबाल साहब फिर भी अखबार स्टोरी तो छाप रहा है, बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए हैं, इंटरव्यूज का हवाला दिया गया है, नामों के साथ छापे हैं, तो इस पर क्या करने का इरादा रखते हैं आप? इसके ऊपर हम करेंगे जो मुनासिब चारा जो ये करेंगे, लेकिन हमसे ज्यादा ये जिम्मेदारी है बरतानिया की हुकूमत की है कि जिसके इदारे के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि उसके इदारे के फंड खुद-बुद होते हैं, तो बरतानिया के अंदर मुमकिन नहीं है कि आप इस किस्म का फ्रॉड जो है उसको होने दें और उससे कोई चश्मपोशी करे। लिहाजा हकायक कौम के सामने आ जाएंगे और ये एक स्पॉन्सर्ड स्टोरी है, एक किरदार कुशी की स्टोरी है जिसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन जो जज की वीडियो है उससे सर ऐसा मजम्मत तो आप यकीनन कर रहे हैं, लेकिन कानूनी चारा जो भी करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी और आपके कायदीन के खिलाफ अगर आप कहते हैं फैब्रिकेटेड ये स्टोरी है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कानूनी माहिरीन है वो इसका जायजा ले रहे हैं और जो उनका मशवरा होगा उसके ऊपर हम फिर अमल करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब अपना रद्द-ए-अमल शेयर करने के लिए। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.